Hello and welcome all to the class. In this chapter, we will read about Introduction to Adobe Animate 2021. My learning goals. Introduction, starting Adobe Animate 2021, creating a new Animate document, elements of Animate 2021, tools panel, creating graphics and shapes, saving an Adobe Animate file, opening a saved file, closing an Animate file. Let's start. Introduction. Adobe Animate 2021 is part of Adobe Creative Cloud Suite. ये पार्ट है Adobe Creative Cloud Suite का, is used for creating interactive graphics and animations. इसको हम यूज करते हैं interactive graphics और animation create करने के लिए. With Adobe 2021 we can design drawings. हम डिजाइन कर सकते हैं ड्राइंग को, एनिमेशंस डाल सकते हैं अपने वेब पेजेस पर और वेरियस स्टैंडअलोन एप्लीकेशन पर. Previously known as Flash Professional, Animate 2021 allows us to create animation that run on multiple platform. पहले हम इसको Flash Professional 2021 भी बोलते थे. ये हमें अलाउ करता है एनिमेशन करना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसको रन करने के लिए, इंक्लूडिंग एंड्रॉइड, आईपैड, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स. स्टार्टिंग Adobe Animate 2021. हम कैसे इसको स्टार्ट करते हैं? फर्स्ट, टाइप एनिमेट इन सर्च बॉक्स. हम सर्च बॉक्स में एनिमेट टाइप करेंगे. Then we will click on Adobe Animate 2021. फिर हम Adobe Animate 2021 पे क्लिक कर देंगे. Click on Create New बटन, जो एक स्क्रीन आएगी उस पर हम क्लिक करेंगे Create New बटन पे. The new document dialog box appear. एक न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा और इस तरीके से हमारा न्यू एनिमेट डॉक्यूमेंट खुल जाएगा. क्रिएटिंग अ न्यू एनिमेट डॉक्यूमेंट. हम न्यू एनिमेट डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं? The new document dialog box offers option to select the type of animation we want to create, such as games, advertisement of और web-based content. वो हमें एक dialog box appear होता है जिसमें हम select कर सकते हैं हमें किस तरह का animation चाहिए, जैसे कि games, advertisement और web-based content. In this dialog box, we can also adjust the following key properties. इस dialog box में हम नीचे दी गई property भी adjust कर सकते हैं. पहला है width and height, then ruler units, then frame rate and then platform type. Accept the default settings and click on the create button to open the Adobe Animate window. Default settings को accept करने के बाद हम क्लिक कर सकते हैं create बटन पे ओपन करने के लिए Adobe Animate की विंडो को. Elements of Animate window. The Adobe Animate window contains a number of components. उसमें number of components होते हैं. कुछ components हैं tool panel, stage, properties panel and timeline. Let's read about them in detail. Stage, the area where we place graphics, text और video clips that appear as part of the movie. ये वो एरिया होता है जहाँ पे ग्राफिक्स, टेक्स्ट और वीडियो क्लिप्स होते हैं as a part of movie. Tool panel. Tool panel offer various tools for drawing, painting, selecting and modifying graphics on the stage. Tool panel offer करता है अलग अलग टूल ड्राइंग, पेंटिंग और सेलेक्ट करने के लिए अलग अलग ग्राफिक्स को स्टेज पे. टाइमलाइन, द एरिया वेयर वी अरेंज एंड टाइम वेरियस ग्राफिक्स एंड एलिमेंट्स टू क्रिएट एनिमेशन. ये वो एरिया है जहाँ पे हम अरेंज करते हैं, टाइम करते हैं अलग अलग ग्राफिक्स और एलिमेंट्स को क्रिएट करने के लिए एनिमेशन. प्रॉपर्टीज पैनल, द पैनल दैट प्रोवाइड ऑप्शंस फॉर चेंजिंग कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्टीज ऑफ करंटली सेलेक्टेड टूल और ग्राफिक ऑन स्टेज. Also, it saves time by eliminating the need to open multiple menu panel. Properties panel से हम अलग अलग तरह के टूल और ग्राफिक को सेलेक्ट कर सकते हैं स्टेज पे लाने के लिए. Tools panel. In Tools panel, there are various type of tools. Let's learn about them. First is Selection tool, जिसकी मदद से हम सेलेक्ट कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को स्टेज पर. Then is Sub Selection tool, जिसकी मदद से हम सेलेक्ट करके मॉडिफाई कर सकते हैं अपने वेक्टर ऑब्जेक्ट्स को. Then Lasso tool, ये सेलेक्ट करता है इरेगुलरली शेप्ड एरियाज को. देन इज फ्लूइड ब्रश टूल, ये वर्क करता है एक ब्रश टूल की तरह, जो कि बट एक स्मूथ लाइन क्लासिक हमें नहीं दे सकता है. ये क्लासिक ब्रश टूल, ये पेंट करता है ब्रश स्ट्रोक की तरह. इरेज टूल, इससे हम इरेजर की तरह यूज कर सकते हैं. रेक्टेंगल टूल, इट ड्रॉज स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल. लाइन टूल, इट ड्रॉज स्ट्रेट लाइन. Pen tool draws precise paths and shape with anchor points. Text tool add text and edit text. Paint bucket tool fill enclosed areas with color. Eyedropper tool picks up and applies colors and properties. Acid trap tool manipulate character during animation process.
हैंडल टूल मूव द व्यू ऑफ द स्टेज, हमें स्टेज का व्यू मूव करने के लिए हम हैंडल टूल से कर सकते हैं. जूम टूल, इट हेल्प अस टू जूम इन एंड जूम आउट ऑन द स्टेज. क्रिएटिंग ग्राफिक्स एंड शेप्स, हम ग्राफिक्स एंड शेप्स कैसे क्रिएट करते हैं. फर्स्ट इज लाइन टूल. लाइन टूल इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन्स. स्ट्रेट लाइन्स को ड्रॉ करने के लिए हम लाइन टूल का यूज करते हैं. द स्टेप्स आर, सेलेक्ट द लाइन टूल फ्रॉम द टूल पैनल, हम टूल पैनल में से लाइन टूल सेलेक्ट करेंगे. Then we will select the stroke का color, size, width, scale under the color and style. फिर हम color में style में जाके हम अपनी stroke का color, size, style, width और scale चेक कर सकते हैं, जो कि हमें properties panel में मिलेगा. Click and drag lines on the stage. फिर हम click करके drag कर सकते हैं line को अपनी stage पर. Release the mouse button to complete the task. और task को complete करने के लिए हम mouse button को release कर देंगे. Pen tool. The pen tool is used to create curved line as well as straight line. Pen tool की मदद से हम curved और straight line दोनों create कर सकते हैं. The steps to use the pen tool are: click on pen tool from the tools panel. Tools panel से हम pen tool select करेंगे. Click on the stage area where the curve has to begin. फिर हम stage area पे click करेंगे जहाँ पे curve को begin होना है, उसको हम anchor point भी बोलते हैं. Position the mouse pointer and drag it to set the slope of the curve. उसके बाद हम mouse pointer को ड्रैग करेंगे और उसको ड्रॉप कर देंगे जहां पे हमें अपने पेन टूल को स्ट्रोक छोड़ना है. रेक्टेंगल टूल. द रेक्टेंगल टूल इज यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स और स्क्वायर. इसको हम यूज करते हैं ड्रॉ करने की रेक्टेंगल और स्क्वायर. टू यूज द रेक्टेंगल टूल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो. पहले सेलेक्ट द टूल फ्रॉम टूल पैनल. टूल पैनल में से हम सेलेक्ट करेंगे अपना रेक्टेंगल टूल. Choose the fill color, stroke size, style, width and scale for rectangle from the properties panel. Properties panel में से हम color, stroke size, style, width और scale choose कर लेंगे. Click on the stage and drag to draw rectangle. हम stage पे click करके drag करके drop कर देंगे अपना rectangle. We can also draw a rectangle with rounded corners. हम अपना rectangle rounded corners से भी draw कर सकते हैं. We can do it by going in properties panel. हम properties panel में जाके rectangle option में जाके rounded corner choose कर सकते हैं. And we can also choose the radius of the rounded corner. इस तरीके से हमारा एक rounded square corner आ जाएंगे rectangles के. Polystar tool. Polystar tool allows us to create polygons and stars with sides or points ranging from 0 to 32. पॉलीस्टार टूल की मदद से हम पॉलीगन्स या फिर स्टार बना सकते हैं जिनके साइड्स रेंज कर सकते हैं मिनिमम फ्रॉम 3 टू मैक्सिमम टू 32. टू ड्रॉ पॉलीगन स्टार द स्टेप्स आर: क्लिक एंड होल्ड द रेक्टेंगल टूल इन टूल्स पैनल. हम टूल्स पैनल में जाकर रेक्टेंगल टूल पे क्लिक एंड होल्ड करेंगे. हम पॉलीस्टार का टूल सेलेक्ट करेंगे जो ऑप्शन डिस्प्ले होते हैं. देन वी विल सेट द लाइन कलर, फिल कलर एंड लाइन विथ ऑप्शन. Expand the tools option area at the bottom of properties panel and specify the following properties. हम properties areas में से tool option में जाके अपनी properties define कर देंगे. For creating polygon, choose style as polygon. अगर polygon create करना है हम style choose करेंगे polygon. Specify करेंगे number of sides जो कि हमारी होंगी minimum 3 और maximum 32. For creating a star, चूज स्टाइल एज स्टार. हम स्टाइल चूज करेंगे एज स्टार. स्पेसिफाई करेंगे नंबर ऑफ साइड्स जो कि हैं बिटवीन 30 टू 32. फिर उसके बाद हम एक स्टार पॉइंट का साइज सेलेक्ट कर लेंगे बिटवीन 0 एंड 1. क्लिक एंड ड्रैग ऑन द स्टेज एरिया टू ड्रॉ शेप्स. हम स्टेज एरिया पे क्लिक एंड ड्रैग कर देंगे ड्रॉ करने के लिए शेप्स को. क्लासिक टूल ब्रश. द क्लासिक टूल ब्रश इज यूज टू क्रिएट ब्रश लाइक स्ट्रोक्स फॉर ड्राइंग और पेंटिंग. क्लासिक टूल ब्रश को हम ब्रश लाइक स्ट्रोक्स बनाने के लिए यूज करते हैं ड्राइंग और पेंटिंग के लिए. वी आर यूटिलाइजिंग द ब्रश मोड मॉडिफायर. वी कैन डेजिग्नेट डिफरेंट रीजन्स फॉर पेंटिंग विद क्लासिक ब्रश टूल. हम ब्रश मोड मॉडिफायर की मदद से डेजिग्नेट कर सकते हैं अलग अलग रीजन्स को पेंट करने के लिए क्लासिक ब्रश टूल को. द अवेलेबल ऑप्शंस हैं पेंट नॉर्मल. पेंट नॉर्मल अलाउ करता है पेंटिंग ओवर द लाइन्स एंड फिल एरियाज. पेंट फिल्स ओनली, ये अलाउ करता है पेंट करने को फिल्ड एंड अनफिल्ड एरिया विदाउट अफेक्टिंग द लाइंस. हमारा जो बॉर्डर होता है इसको अफेक्ट करे बिना वो हमें फिल करने देता है हमारा अनफिल्ड एरिया. पेंट बिहाइंड, पेंट इन ब्लैंक स्टेजेस एरिया विदाउट इन्फेक्टिंग लाइंस और फिल्ड एरियाज. पेंट सिलेक्शन अप्लाइज अ न्यू कलर एक्सक्लूसिवली टू सेलेक्टेड एरिया. जो हम एरिया सेलेक्ट करते हैं हम केवल वहीं पे
वो कलर डाल पाएंगे पेंट सिलेक्शन की मदद से। पेंट इनसाइड की मदद से हमारा जो कलर है वो बाहर स्पिल नहीं होता है। टू यूज ब्रश टूल फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। ब्रश टूल की मदद से हम नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। हम पहले टूल्स पैनल्स में से क्लासिक ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज पैनल में से फिल कलर ऑप्शन में से हम वहां से अपना कलर टाइप चूज कर सकते हैं। क्लिक ऑन ब्रश मोड मॉडिफायर एंड सेलेक्ट अ पेंटिंग मोड। हम ब्रश मोड मॉडिफायर में जाके एक पेंटिंग मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज अ ब्रश टाइप एंड साइज। हम ब्रश का टाइप और साइज चूज कर लेंगे। ड्रैग ऑन द स्टेज टू ड्रॉ अ ब्रश लाइक स्ट्रोक। हम ड्रैग करेंगे स्टेज पे ड्रॉ करने के लिए एक ब्रश लाइक स्ट्रोक को। फिलिंग कलर्स इन अ शेप। हम शेप में कलर कैसे फिल करते हैं। द पेंट बकेट टूल अलाउज अस टू फिल एनक्लोज्ड एरिया विद सॉलिड कलर और ग्रेडियंट फिल। ये हमें अलाउ करता है सॉलिड कलर फिल करना या फिर ग्रेडियंट फिल करना। पेंट बकेट टूल वी कैन यूज बाय फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट, हम टूल पैनल में जाके पेंट बकेट टूल सेलेक्ट कर लेंगे। हम प्रॉपर्टीज पैनल में जाके फिल ऑप्शन में जाके अपना कलर एंड स्टाइल चूज करेंगे कलर पैलेट में से और क्लिक कर देंगे उस शेप के अंदर जहां पे हमें वो कलर फिल करना है। एज यू कैन सी इन एन इमेज ऑन द स्क्रीन। इरेजर टूल इज यूज टू रिमूव और इरेज एन अनवांटेड पार्ट ऑफ ग्राफिक फ्रॉम द स्टेज में से अनवांटेड पार्ट ऑफ ग्राफिक को रिमूव करने के लिए हम इरेजर टूल यूज करते हैं। फर्स्ट वी विल सेलेक्ट द इरेजर टूल, देन वी विल क्लिक ऑन इरेजर ऑप्शन। हम इरेजर टूल पे जाके टूल पैनल में प्रॉपर्टीज में जाके टूल सेक्शन में जाके इरेजर ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी डिजायर्ड शेप ऑफ इरेजर चूज कर सकते कि हमें शेप की क्या चाहिए अपनी इरेजर की। एंड देन वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप एंड रिमूव विद द माउस ऑफ हेल्प। और फिर हम अपने माउस की हेल्प से इरेज कर सकते हैं जो अनडिजायर्ड एरिया है हमारा स्क्रीन पर। सेविंग एंड एडोब एनिमेट फाइल। एडोब एनिमेट फाइल को सेव कैसे करेंगे। हम क्लिक फाइल मेन्यू पे जाएंगे, सेव ऑप्शन पे जाएंगे, हम अपनी फाइल की डेस्टिनेशन चूज करेंगे, फाइल को एक नेम देंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ओपनिंग अ सेव्ड फाइल को ऐसे ओपन करते हैं। पहले हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, फिर हम ओपन ऑप्शन पे जाएंगे, नेविगेट करेंगे फोल्डर को जहाँ पे फाइल सेव होती है, सेलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड फाइल, क्लिक करेंगे ओपन बटन पे। इस तरह से हमारी सेव फाइल ओपन हो जाएगी। क्लोजिंग एन एनिमेट फाइल को क्लोज कैसे करना है। हम फाइल मेन्यू पे जाएंगे, क्लोज ऑप्शन पे जाएंगे, हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आएगा सेव चेंजेस। इफ यू वांट टू सेव क्लिक ऑन यस, otherwise click on no. By this we can close the animate file. Now it's exercise time. Choose the correct answer. What software can you use to create animations and game easily? Adobe Animate. The light gray area around the stage is called work area. What is the purpose of timeline in Adobe Animate? To organize and controls the timing of animations. What is the default extension of an animate file? That is option B, .fla. What is the function of stroke color option in Adobe Animate? That is to change the color of outline of a shape. Filling the blanks using given words. In Adobe Animate, the stage is like a dash where you can create animations. In Adobe Animate, stage is like a canvas where you can create animations. The dash in Adobe Animate contains settings and options for selected objects or elements on the stage. Properties panel. The dash tool in Adobe files shapes with color, creating solid shapes without lines. That is paint bucket. Adobe Animate allows you to adjust the size of the stage by using the dash menu and selecting document. By using modify menu and selecting the document. You can create a new document in Adobe Animate by selecting dash option from the file menu. By selecting new option from the file menu. State true or false. The paint bucket tool lets us change the color, thickness and style of strokes or outlines of shape. False. The properties panel in Adobe Animate contains settings and options for selected objects or element on the stage. True. The pen tool in Adobe Animate used for filling shapes with color. False. The stage in Adobe Animate is like a blank canvas where you can create your animations. True. The timeline in Adobe Animate
helps you to organize and control the timing of your animations. True. Here the exercise end. Do practice and revise it.